what is the medium of communication? मैसेज इफेक्टिवली कैसे आता है? क्योंकि देखिए कि when we are just talking, जो हम कहते हैं ना, दूरदर्शन की पहले बात करते थे, न्यूज़, वो कैसे रहती थी? एक स्टैटिक है, मतलब it was very boring. और ऑल ऑफ सडन बीच में अगर कोई एक न्यूज़ का वो सब फुटेज आता था, सो दैट वाज मोर एक्साइटिंग. अभी तो टोटल अलग ही है कि एक बाजू में न्यूज़ भी दिखाते हैं, वो ग्राफिक्स रहता है. मग दूरदर्शन के ज़माने में वो काफ़ी एक्साइटिंग रहता था कि पहले वो वाचून दाखवायचं असं तो पढ़ के दिखा देता, और फिर वो होने के बाद फिर क्लिप आ जाती थी, क्लिप के पीछे से आवाज़ आती थी, और फिर से जो रीडर है वो आता है. अभी तो क्या है कि क्या लगता है आपको, और ये जो है ना अभी ध्यान से मतलब दे हैव ट्रेन लाइक दैट कि ऐसे हाथ करना है, ऐसे करना है, ये ऐसे करना है. नो, दे हैव आल्सो अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज. IBM लोग वो तो बड़ा चल दाढ़ी वाला ना, तो निखिल वागे मतलब इतना ओवर एक्टिंग होता ना उनका कि खैर. So I was just thinking, they have this acting for actor and director in mind. And like you said, cinema is a director's, he's the actor, it's his vision and everything. So people, directors who are also actors, do you think that when they make their actors act like, say, Raj Kapoor or Sumini Gupta, so when he directs a movie, somewhere his acting, this influences his actors, so do you feel the creativity part it will affect if a director is also an actor? No, what happens? Or will it, because they say that to some extent a good director is somebody who explains what he wants to the actor and also allows the actor to put his own creativity, and that's what makes it a very good scene or a shot. But if he himself has been an actor, so somewhere his he feel that इसको ऐसे मोड करना चाहिए था, and so the actor's own creativity gets curtailed. See, actually क्या होता है ना, why we appreciate these people, नसरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल और ये जो स्कूल के लोग हैं, उनको हम appreciate क्यों करते हैं कि of course the media is the director's media, मगर क्या होता है ना कि when the directors expect particular result from the actor, तो उसका खुद का कुछ तो होमवर्क होता है. Minimum requirement. Yes. Additional. एंड एडिशनल मतलब ये जो एक्टर्स होते हैं ना, वो अपना खुद का होमवर्क करते हैं. दे ट्राई टू प्रिपेयर फॉर दैट कैरेक्टर, और फिर वो कैरेक्टर सरवाइव करने का उनकी कोशिश है. तो इसमें डायरेक्टर अगर एक्सपेक्ट करता है 10% और वो एक्टर 20% देता है तो वेल एंड गुड. No, but if the director is also an actor, very established actor, so then when he makes the actor enact a particular scene, he tells his vision, everything. So कहीं ना कहीं he being an actor also will it help or will it hinder? That way I feel what my question is, as I understand, is that director directs an action or an expression, and then if actor is coming out with something extra, whether it is hindrance or is it positive? That's what no, that's not what I asked. What I'm asking is, let's take example Raj Kapoor. Raj Kapoor has been an actor. Okay, he has also directed movies, right? Now, when Raj Kapoor makes a particular actor enact a particular scene, he explains because the director wants his vision to come. Okay, but he himself is also an actor. So when he explains that this is what I want, and the actor enacts, somewhere his own acting abilities also play a role. Compare him to a director who's not been an actor. Okay, so he wants to, so he
allows that actor to put his own creativity also. So I am asking that a director who has also been a very successful actor vis-a-vis a director who has not been an actor, who Who's can better? give, who not better means who Whether can it is help positive or a negative. good actor come out with his best this to make that's what I think. Let's take example of See, I'm telling you. I'm telling you. actor come director like say Raj Kapoor. Of course Raj Kapoor never directed Amitabh Bachchan. Let's just take an example, and there's Amitabh Bachchan who can put his own or Nasiruddin Shah, whoever, somebody who can put their own creativity vis-a-vis a director who's not been an actor. So since we are discussing acting principles Yes, from yes, an actor yes, and yes, director, yes, I'm yes. saying that will a director's acting abilities help Or a hinder. good actor or hinder in his vision? Because a good actor can also put his own creativity into the scene. So that's See, why I'm again, asking. see, good actor is basically the director. It's a depending on the sensibility of the director. One I'm telling you कि सबसे पहले तो हर जो फिल्म मेकर होता है, each and every filmmaker, sensible filmmaker should know the basic principles of acting. ना बेसिक प्रिंसिपल्स में क्या है कि जो भी चीज़ करे वो रियल लगे ना। तो इसमें क्या होता है ना कि जो ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं कि जिनको लगता है कि दे नो एक्टिंग ना, दे नो एक्टिंग, बट व्हाट काइंड ऑफ एक्टिंग? लाइक एक्टिंग, लाइक मतलब क्या होता है कि उनको लगता है कि एग्जैजरेशन मतलब एक्टिंग है, और लाउड डायलॉग्स बिहेव करना मतलब एक्टिंग। अभी इसमें फर्क और एक होता है कि जो डायरेक्टर्स थिएटर से आते हैं, director comes from the theater, they have somewhere impact of theater on their film. Now you cannot imply the same principles of a theater incident ना। तो उसमें क्या होता है कि even though director is a very good actor, but if he has worked for theater, then it is not applicable to use the same principles in theater incident। क्योंकि ज़्यादातर हमने ऐसे देखा है कि ये जो फिल्म के जो डायरेक्टर्स होते हैं जो थिएटर से आते हैं, उनको बेसिकली सिनेमा की लैंग्वेज का ज़्यादा पता नहीं होता। तो उनको क्या लगता है कि जो एक्टिविटी है वो पूरी की पूरी 360 डिग्री में एक्टिविटी होना जरूरी है। तो इसमें उनके दिमाग में कहीं ना कहीं पे थिएटर ही होता है, क्योंकि शुरुआती जो फिल्में थी, इवन जो पहिली फिल्म थी पृथ्वीराज कपूर यांच्या बऱ्याच पिक्चरमध्ये तसा असेल तो सौरभ मूवी यांच्या हां. पिक्चरमध्ये बिकॉज पृथ्वीराज कपूर वॉज फ्रॉम थिएटर But that is the reason. Yeah, but- उनका dialogue बहुत loud होता So that is for directors or actors who have come from theatre to this. I'm saying that if a director has acted in film, It's depend then on he that become a particular people. director. It's depend on that director. Actually, It's depend on the Actually, it director might help ability them. to What accept I'm that. asking is a director having acted in a movie and then also is a director, does it help It in cannot- an actor's creative Yes, abilities yes, I'm being telling you. fully Yeah, I'm telling coming my to the experience. fore? क्योंकि क्या होता है ना कि जो डायरेक्टर पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं सजेशंस, their work will enhance ना। ना जैसे मैंने आपको कहा कि यार इसको इस कमरे को ना आप रेड कलर आप दे दीजिए, आपने रेड कलर ही इस्तेमाल किया है पूरे दीवारों को, मगर टू गेट द डायमेंशंस आपने एक दीवार को थोड़ा डार्क रेड मारा है, दूसरी दीवार को थोड़ा सा लाइट किया है, आपने रेड ही इस्तेमाल किया है, मगर उसमें अगर आपने डायमेंशंस दिए हैं तो एकदम फ्लैट रेड अच्छा लगेगा या डायमेंशनल अच्छा लगेगा? नेचुरली ना। तो अगर मैंने आपको कहा कि आप एक ऐसे लड़की का रोल करो कि जो घर से भाग के आई हो ना,
तो उसमें आपने उसमें कुछ एडिशनल कलर्स उसमें डाल दिया तो आई विल बी हैप्पी. बट इफ आई एम अ लीडिंग डायरेक्टर एंड इफ आई हैव रिटन द ट्रीटमेंट नोट, And also if you have been an actor and yes. you feel that it should be like this. तो Is उसमें that in that case you are owing, मतलब it will harm. Actually, nowadays Depends director on never tells person to actor how to person. act. Huh? Actually, nowadays director never tells the actor how to act. Actor has Ah, to yes. improvise himself. So, You cannot generalize it. Yes. Yeah, I feel It that depends is on nothing- person to person. If I am a receptive kind of person, I will accept it. Accept it. Otherwise, there is nothing like an ideal. Yes, there is no ideal things. So Yes, it exactly. is a bringing coming together from director side or actor side which enhances the performance, and a role or a performance is ideal whether director contributes it or even the actor is able to contribute to it. So what comes to it and enhances it should be acceptable for the director who knows acting, or he will give the time for if a better performance if an actor is given, he will accept that because it enhances the fact. actually when director tells the actor how to act, then the actor will tell the director, okay, you can only act, and why I am acting. That is the जैसे thing. ना क्या होता है ना, Why I asked this question is since the visual media like cinema and it is a director's vision, okay, like we say if a director was an editor or a cinematographer, then that helps making a movie because editing is and cinematography the same way. I was asking whether acting, being an actor, Yes. helps. it helps ना, जैसे Because he will also know from actor's I'm point of telling view. you how good it example. is. I'm telling you very good example of these things. Gurudat, Gurudat, yes. Gurudat was an actor and director. ना, तो एक ना प्यासा में एक सीन है, ऐसा देखिए हम लोगों ने, चाहे तो कल हम देखेंगे उसमें पोर्शन में, उसमें मतलब एक स्किल है डायरेक्टर का टू क्रिएट दैट रिजल्ट इज अ चैलेंज. Correct. तो उसमें क्या था ना कि एक सीन था वैसे कि गुरुदत्त उससे बचाता है पुलिस से बचाता है और फिर उसे छोड़ देता है. फिर वो उसके घर में सीढ़ियों के ऊपर से चला जाता है घर में, और ये वहीदा रहमत नीचे है. और उसे मतलब क्या आत्मीयता, प्रेम या भक्ति, ऐसे सारे फीलिंग के साथ उसको देखना था. प्रेम, रिस्पेक्ट, मगर डर. एंड Gurudat has to see her. नॉट गुरुदत्त, Vaidya Raman has to see her. तो उसे देखना था. अभी वो इतना पावरफुल शॉट था कि एक शॉट हुआ, दूसरा शॉट हुआ, तीसरा, पूरा का पूरा आधा दिन उसमें चला गया. बट द रिजल्ट व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग Not getting what Gurudat wanted. तो उसने लंच ब्रेक में बात की थी वहीदा के साथ. उसने पूछा कि आप सबसे ज़्यादा मिस किसे करते हैं लाइफ में, किसे मिस करते हैं? तो उसने कहा फादर के पिताजी, क्योंकि माँ और फादर का कुछ झगड़ा था तो वो मिस करते थे उसे कहा. और अगेन द पर्सन जिसको आप लव करते हैं बहुत, लेकिन डरते हैं उससे. डरते नहीं हैं. He asked that question. तो उसने कहा मेरा पिताजी इसके लिए मेरी ये सारी फीलिंग्स. All this. I love him, I get scared Yes. of him and I'm missing him. Yes. तो उसने उसे कहा कि when you forget that I am standing there, you just imagine that Your father is standing. और उसके बाद ना उसको जो फीलिंग आया फादर और इसका, क्योंकि उसे एक इमोशनल मेमोरी भी होती है ना? तो उसके साथ जो उन्होंने देखा एक पर्टिकुलर expression or 100 more than 100% वो He got expression it. ना. तो इसमें not necessary at a particular time whatever director expects, even वो उसके सामने कोई बड़ा अमिताभ बच्चन, रजनीकांत भी हो, तो भी उसका पर्सनल स्टेट क्या है ना, कि उसका जो स्टेट क्या है वो
इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, वो पहले से पता नहीं हो सकता। तो ऐसे हालात में जो रिजल्ट देता है वो एक्टर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है। अभी इसमें जैसे एक आर्टिस्ट होता है, पेंटर, वो जब पोर्ट्रेट करता है तो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक वो उस पे पेंट के ऊपर पे फिर से रब करेगा, फिर से पैचेस करेगा, और द मोमेंट ही फील्स कि नो इट इज इनफ, तो वहां पर वो रुक जाता है। डायरेक्टर रिटेक्स क्यों लेते हैं? रिटेक के ऊपर रिटेक्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? उसी वजह से होते हैं कि जब तक डायरेक्टर doesn't get the satisfaction of that particular acting, particular image, क्योंकि एक्टर जो होता है उसको एक्टर के लिए that particular shot is important, but for the director the entire edited film is important, outlook of that film ना, तो उसके वजह से now it's depending on the director as well as actors. अभी इसका एग्जाम्पल क्या है? To match the look of character, to match the scenes or situation in the film, you need that judgment. And Alfred Hitchcock जो थे, he was a master of all these things. मतलब क्राउड में एक आम आदमी भी है, उसे लगता था कि ये कैरेक्टर अच्छा लगता है, वो उसे इवन तो that person was not experienced in acting, उसे वो कितना निभाने के लिए हो। Whereas some directors they try to get a reason from the direct actors और उनके लिए वो होमवर्क देते हैं। जैसे आप लोगों ने ये फिल्म देखी हो सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय इज रिक्शा पुलर ओमपुरी शबाना आजमी जो इसके ऊपर है कलकत्ता के रिक्शा पुलर से। तो उसमें ओमपुरी को वो फीलिंग आने के लिए रिक्शा पुलर का वो 15 दिन तक रोज रिक्शा उठा जाता और दौड़ता था इन कलकत्ता। तो कभी वो एम्प्टी रिक्शा रहते थे, तो कभी ऐसे बैठ के ऐसे नहीं चप्पल पहन के वो बिना जूतों के otherwise you will not be because you have never done that. And Three Idiots also Amir Khan who experienced the college life, he stayed with students. हाँ मतलब वो ज़्यादा मतलब रिसर्च, इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च ऑफ एक्टर्स ना, तो वो उनका होमवर्क होता है। जैसे नटरंग फिल्म में वो 15-20 किलो वजन कम किया था और फिर बढ़ाया भी था। जैसे हमारी जो फिल्म है उसमें एक इनक का रोल था। सो वन ऑफ आवर कैरेक्टर he hired 2 or 3 people eunuch in his house to stay there just and to observe their body language. ये जो फिल्म थी गोली बाजार उसमें जिसने यूनिक का काम किया है तो बाद में हम देखेंगे तो Even Sayaji Shinde used to. यूनिक हाँ। Yeah. तो ये क्या है ना कि आपका जो रिसर्च है वो डायरेक्टर का भी होना उतना ही जरूरी है और एक्टर का भी होना उतना ही जरूरी है। Get the nuances right. Yes. अभी इसमें क्या होता है कि चीज़ रियल लगे ना, हमारी कोशिश क्या होता है कि चीज़ रियल लगे ना। तो इसमें सबसे पहले तो मैटर होता है व्हेन यू आर डूइंग अ कास्टिंग एज अ फिल्म मेकर। कास्टिंग इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि ऐसे जो कैरेक्टर हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति की जो एकदम ऐसे गर्भ श्रीमंत जैसे घर से आया हुआ है और वो कुछ दिनों के लिए सोचता है कि चलो मैं गरीबी का जीना जीता हूँ और 10 दिन के लिए स्लम में जाके रहने लगता है। तो क्या उसके इवन तो ही इज अपीयरिंग हिज कॉस्ट्यूम्स एंड एवरीथिंग, क्या उसके गेस्चर्स बदल जाएंगे? नहीं बदल जाएंगे। या एक गरीब आदमी भी है, उसे 10 दिन के लिए आप
राजगद्दी पर बिठा दो, क्या उसके गेस्चर बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। आगे पॉइंट है यहाँ पर, हाँ, गति जो है ना, नाउ इट्स अ मैटर ऑफ दैट थिंग कि जो कैरेक्टर आप ये करते हैं, डिटरमिन करते हैं, तो कैरेक्टर का जो व्हाट यू कैन से जो अभिनय है वो सिर्फ बॉडी से और इससे नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ संस्कार, मतलब आगे जो पॉइंट है कि द वॉक ऑफ सुपेरियर, मिडल, इंफीरियर मैन और वुमेन और डिफरेंट एज, कि उसका एज क्या है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है। जैसे जो यूनक्स होते हैं वो कितना भी कोशिश करे कि वो फीमेल के जैसे चलने लगे, तो वो क्या लगता है चलना, वो ऐसे ही चलेंगे। मतलब जैसे आदमी चलते हैं ना, मैनली जो फीलिंग होता है, मतलब जो रफनेस होता है वो वैसे ही होता है। तब इसमें अभी ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जो अंगिका की बात की हमने, बॉडी लैंग्वेज, तो उसमें जिसमें अंग, उपांग और चित्रा भी है, तीन चीजें हैं। ये तीनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या बनता है? नृत्य ना। फॉर एग्जाम्पल, हु कैन शो अस वन स्टेप ऑफ अ डांस? डांसर कौन है? No, doesn't matter. See, we just wanted to any one or two steps. उसकी हाँ no, that's fine. See, this is the thing. अभी इसमें ना एक कोई तो स्टेप पॉज कीजिए, just pause. Yes, pause. Now, this is a what you can say one step. ठीक है, ऑब्जर्व किया, स्टोर कीजिए मेमोरी में, ठीक है, छोड़ दीजिए। अभी इसमें प्लीज सी नाउ कौन से एलिमेंट बॉडी के उसमें इन्वॉल्व है। लाइक दिस वाज आई थिंक आप ये दिखा दीजिए। हाँ, यस, ये पोज है। हाँ, अभी इसमें सी आर्म्स, It's also the Arm, stance. हाँ? It's also the stance. स्टांस, ओके। अभी इसमें Arms and arms and Everything. everything. Arms, legs, waist, And waist. eyes. Yeah. The entire- Yeah, facial हाँ, gestures, yes, everything, yes, expression. everything. No, it means उसमें गेस्चर है, उसमें सात्विक भाव है, मतलब आपके मन का जो भाव है। सात्विक भाव हमने डिस्कस नहीं किया लास्ट पॉइंट। सात्विक भाव है, अंग है, उपांग है ना, और अल्टीमेटली एक्सप्रेशन है। तो जिसमें एक्सप्रेशन में सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट जिसे कहा जाता है दैट इज अ नृत्य ना। एक्सप्रेशन में जब आदमी हम कहते हैं अरे वो खुशी से नाचने लगा, उससे ऊपर और क्या एक्सप्रेशन हो सकता है ना? तो जब हम कहते हैं अरे खुशी से गाने लगा, मतलब हम ऐसे भी बोलते हैं कि अरे वो इतना खुश हुआ खुशी में रोने लगा, या खुशी में नाचने लगा, या गाना गाने लगा। मगर फिर भी जो सबसे ऊंचा होता है खुश होकर नाचने लगता है। Now, what are the elements involved in that dance? Your मेधा, your what you can say, अभी आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विचार है, जो इंटेलेक्ट है, इमोशन है, कंटेंट है, वो इन्वॉल्व है। आपकी बॉडी इन्वॉल्व है, बॉडी के अंग, उपांग, प्रत्यंग सब इन्वॉल्व है ना। तो उसमें कई सारे डिफरेंट रस जो है, डिफरेंट एसेंस जो है, वो आपके मुद्राएं से, जो हस्त मुद्रा
अभिनय हस्त मुद्रा जो है ना, तो ये मुद्रा जो है कि जिसमें वो कथक में आपने क्या किया था, This what I did was Bharatanatyam. भरतनाट्यम, हाँ, जो भरतनाट्यम में है कि वो जो मुद्राएं हैं, भरत का जो नाट्य शास्त्र उसमें कई सारे, इसमें वो अष्टांग मुद्रा है, कई सारे मुद्राएं हैं जो अगर डिटेल में जाना है तो अभी इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू यूज ऑल दिस मुद्रा इन सिनेमा, बट स्टिल अगर हमें क्लोजअप भी पर्टिकुलर लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो जिस ढंग से उन्होंने हाथ रखा है सुधीर जी, हाँ, उसमें एक रिदम है। कैन यू शो टू मी? हाँ, यस, पुढे बसन हे करा नाउ, इसमें सी इनके जो हाथ में एक रिदम है और उनका स्टेट ऑफ माइंड आपको दिखाई देगा। नाउ ही इज मोर रिलैक्स, इज मोर टुवर्ड्स क्रिएटिविटी, और इसमें मगर वही अगर वो टेंशन में होते हैं तो कई कुछ शायद गेस्चर, हाँ, या ऐसे होल्ड किया होता। नाउ इफ यू आर सिंपली शोइंग अ क्लोजअप्स, तो उसमें उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है, द स्टेट ऑफ माइंड कैन बी रिपीटेड, या जैसे बैठे हुए और लेग शेक हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? मतलब देयर इज अ समथिंग जो मन में उनके जो विचार चल रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो मुद्राएं हैं, हम डे टू डे लाइफ में ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, या तो वो जो मुद्राएं होती है, हाँ, या ये भी जो है ना, तो इसके पर्टिकुलर कोडिंग्स है, पर्टिकुलर मैसेजिंग है उसमें से ना। तो एज अ डायरेक्टर जहाँ पर आपको स्कोप नहीं है कि फेशियल इसमें आपको ये करना है, वहाँ पर यू सिंपली यू कैन शो। पहले हिंदी फिल्मों में हमेशा ना आखिर में एक सीन होता था या शॉट होता था, क्या होता था? दो मतलब हाथ जो है हीरो का या हीरोइन का, वो हाथ में हाथ दिया, हाँ, मतलब बाकी, हाँ, सिंबॉलिक। सो एज अ लॉट ऑफ मीनिंग, या जैसे हम ऐसे करते हैं मुट्ठियों में दम है ना, हम ऐसे नहीं करते मुट्ठियों में दम है ना, इसका मीनिंग बदल जाता है। तो कई सारे जो हस्त मुद्रा है, अभी डे टू डे लाइफ में व्हेन वी वांटेड टू एस्टैब्लिश योर कैरेक्टर्स ना, तो कैरेक्टर में उसके मन के जो थॉट है वो आप उनके हाथ के एक्टिविटी से में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे वो वर्कर है, या रिच आदमी है, या रिलीजियस है ना, जैसे इनके हाथ में डंडा है ना, हाथ में ये, इट विल गिव अ पर्टिकुलर मैसेज ना। मेरे हाथ में दो अंगूठी है, इनके हाथ में अंगूठी है, और किसी के हाथ में कुछ काला धागा होगा या कुछ चीजें होगी, इवन इट हैज अ पर्टिकुलर मैसेज। मतलब 5-5, 6-6 अंगूठियां है सोने की, और वो हाथ आप दिखता है कि भीख मांग रहा है, जस्टिफाई होगा? अगर हम दिखाते भी है तो इसका मतलब है कि कुछ अलग है, ऑडियंस को कुछ सस्पेंस है उसमें, ठीक है। तो हस्त मुद्राएं हैं, एंड दे चारी। चारी इज व्हाट, जब हम कहते हैं उसका चरित्र अच्छा है या चरित्र खराब है, चारित्र, इसका मतलब चाल चलन। So what is a चाल चलन? स्वभाव। Behavior. Again, विचार आणि वृत्ती. Yeah, it is what you are. विचार आणि वृत्ती. How you react to different situations. So literal meaning of चारित्र is चाल ना। जो आदमी सीधे विचारों का रहता है ना, मतलब हम सिंपली कहते हैं कि अरे उसका चरित्र बहुत अच्छा है। अभी अच्छे चरित्रों के सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है कि हाँ
हाँ शराब ना पी, शराब ना पिए, व्यभिचार ना करे, व्यभिचार ना करे, चोरी हाँ, ना करे, चोरी ना करे, हाँ काम से ना बढ़ता। हाँ काम से, मतलब ये जिसकी स्ट्रेट चाल है, चारी, नाक के सिर पे चारी का हाँ नाक के सिर पे चल हाँ मतलब चारी का लिटरल मीनिंग है प्योर चार, मतलब लेट्स इट इज कनेक्टेड टू हाउ डू यू वॉक इन सोसाइटी, और उसी से वर्ड है चारित्र। संस्कृत के मतलब इंडियन लैंग्वेज के सारी लैंग्वेज में चारित्र, हिंदी, उर्दू, अपना हिंदी मराठी सब इसमें यूज किया चरित्र, जाता है चरित्र। ना। तो इसमें आप जो नृत्य कर रहे हैं तो उसमें आपका चारी भी इस्तेमाल होगा, सारी चीज़ें होगी अल्टीमेटली। एक तो है जिसे कहते हैं भूमि चारित्र, और जो चारित्र है जिसका हम कहते हैं ना उसका चारित्र रोल करना, चरित्र, चरित्र रोल ना, मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर ना, पर्टिकुलर कैरेक्टर, पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर उसका जो भी एटीट्यूड है, विजन है ना। जैसे हमारे यहाँ पर जो चरित्र अभिनेता रहते थे या अभिनेत्री, कई सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल चरित्र अभिनेता है, जिसमें वो A.K. हंगल से लेकर हाँ कई सारे लोग, मुखरी या हाँ शकुंतला, केष्टो, ये हाँ तो पहले शुरुआत में लोग अभिनेता होते हैं, फिर काम नहीं मिलने के बाद चरित्र चरित्र अभिनेता होते हैं। तो है भूमिचारी, भूमिचारी स्पेसिफिकली वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रेट जमीन पर चलने वाला आदमी है, हम कहते हैं ना, अरे बहुत जमीन पर चलने वाला आदमी है। तो इसमें देखिए हम डे टू डे लाइफ में हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें कितना सारा मीनिंग है। भूमिचारी जो है स्टेप चलने वाला, उसी पे अलग है व्यभिचारी। सो हु इज व्यभिचारी? Who doesn't follow the Norms norms? of the society. व्यभिचार, भ्रष्टाचार, चार इस ना, तो इसमें जो फिट है वो द फिट कारण, जिसे हम कहते हैं ना, इसका कारण क्या है? कारण का लिटरल मीनिंग क्या है? रीजन, बट कारण इज बेसिकली व्हाट इज अ चाल, व्हाट इज अ एक्टिविटी, कार्य कारण भाव, कार्य कारण ना, कार्य कारण भाव, इट्स वेरी गुड वर्ड। मतलब जिसने जो चाल चली उसका जो रिजल्ट है दैट इज अ कारण ना। हम पूछते हैं इसका कारण क्या है? मेरे उसने उसे थप्पड़ मारी, इट मीन्स उसने उसे थप्पड़ मारी है, उसने उसका पर्स चोरा है, उसने उसे कुछ किया है। सो द एक्टिविटी जो कारण होता है या कारण होता है, which is used with the both the feet। अभी जैसे चलना है कि एक राउडी आदमी है, एटीट्यूड वाला है, या गरीब है, या हर एक का जो कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम मीन्स एक्टिविटी, each and every activity leads to the particular result ना? तो इसमें अभिनय का और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है गति। जैसे अभिनय क्वेश्चन अभी भी देखे वो पैसे नहीं उठाते, तो उसका जो एक उसकी जो गति है ना, या फिर राज कपूर जो एकदम ऐसे ना, तो उसका ये क्या था कि उसका जो स्पीड है, उसका जो ट्रांस है एनर्जी का, इट हैज अ डिफरेंट गेट और गति। अभी इसमें आप एज अ अभिनेता आप किस रस, आप करुण भाव, करुण रस आप इसमें डाल रहे हैं। तो करुण रस में एक राजा का करुण रस अलग होगा, एक आम प्रजा में जो आदमी है उसका करुण रस अलग होगा। स्पीड विल बी द सेम, स्पीड विल बी द सेम, व्हाट स्पीड, स्पीड, स्पीड हाँ, but the way of this is this
maybe हल्के से होगा। Speed of audio with dialogue will differ. For example, राष्ट्रपति ना, राष्ट्रपति का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। क्यों होता है? As per his position, status, stature. Because he is a prime minister. मतलब कल राष्ट्रपति को लगे जाके गली में क्रिकेट खेले, चलो वो नहीं खेल सकता ना। तो वो जो गति है उनको उनका जो what you can say is उनका जो सोसाइटी में स्टेटस है वो मेंटेन करने के लिए they have to maintain their speed also, speed of their activity। जैसे कई बार भी जाते हैं तो उनकी एक्टिविटी होती है, मतलब दे यू कैनॉट सी उसमें नेचुरल फोर्स आपको नहीं दिखाएगा। तो इसमें आप का जो अभिनय है उसमें एज अ डायरेक्टर आपको पता है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के अंदर आपका प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट जो भी है, तो इसमें एंटागनिस्ट जो है उसका सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, और जो प्रोटैगनिस्ट है उसका क्या है। वो जो फिल्म थी ना अमिताभ बच्चन की कालिया, वो गांव से आता है और ये लिफ्ट में कालीचरण यार, तो उसमें ये जो किरदार है वो गांव से आया हुआ है और उसका जो दोस्त है अमजद खान। तो दोनों की जो एक्टिविटीज है क्या फर्क होता है? बहुत पॉलिश्ड है, एक रफ है। हाँ, It comes to body language. so that's the thing. Body language is a matter of gati. Amjad Khan is very controlled kind of body language. Even when expressing during that particular shot, to lift for the shot. Whereas Amitabh was very exuberance kind of thing. जैसे वो दरवाजा बंद हो जाता है तो वो एंशियस हो जाता है कि मेरा 2 स्टेप चला गया, दीवार ने उसको खा लिया। उसमें ना, तो इसमें आप देखेंगे ना कि जो बॉडी लैंग्वेज और इसमें और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, वो तो संजू कुमार। नया दिन नहीं का कई सारी फिल्में जो है मतलब संजू कुमार का एक क्या था ना, मीन्स सी हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्पीच एंड योर अंगिका बॉडी लैंग्वेज। तो उसमें ड्यूरिंग शूटिंग वो क्या करते थे कि सारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने एक्सप्रेशन और इस पे कॉन्सेंट्रेट करते थे। ओके, वो सब डायलॉग को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डायलॉग ऐसे जो है उनका सारा जो ये है वो उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और वही फिल्म जब एडिटिंग को डबिंग को जाती थी तो उसमें सारी एनर्जी डायलॉग में डाल वॉइस में डालती है। तो नेचुरली उनका जो परफॉर्मेंस है वो हाईलाइट होता है। Sir, I want to ask, what is the difference between a casting director and a director? Director is the person who sets the cast. सी एक्चुअली कैसे है, अभी कास्टिंग डायरेक्टर का जो ये है जो कंसेप्ट है वो हॉलीवुड का है। Hollywood. हाँ, हॉलीवुड का कंसेप्ट है कास्टिंग का। तो उसमें उनके पास सारा डेटा होता है कि कौन से एज के, कौन से बैकग्राउंड के, रेस के, लुक के, कॉम्प्लेक्शन के सारे डेटा होते हैं। अब आपने आपका रिक्वायरमेंट दिया है कि मेरे को ये कैरेक्टर चाहिए, देन दे विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट थिंग
तो उसे मैच करने वाले लोग कौन है ना, और फिर वो उसे रिकमेंड करते हैं। आपने यहाँ पर क्या है ये कि तो डायरेक्टर करता है ना, ये सब फोटोज यस आई एम टेलिंग, अभी मैं डायरेक्टर हूँ, मैं और कास्टिंग डायरेक्टर, मुझे एक कैरेक्टर चाहिए ना, कि वो कैरेक्टर के लिए मैं आपको कहूँ कि मुझे ऐसे कैरेक्टर चाहिए, तो व्हाट यू विल डू, यू विल से 10 पीपल Only 10. हाँ हाँ, and out of that 10 people 20 people whatever you will decide ना। अगर मैं कहता हूँ कि 5 फुट का एक मोटा आदमी चाहिए, तो ऐसे 50 लोगों के जो लिस्ट उसके पास रहेगी, उसमें से 10 लोगों को he will say, but ultimate decision will be yours हाँ। जैसे Like if you take Slumdog Millionaire, Danny Boyle is the director, but India में all the characters, that lady, Loveline or somebody, she was the casting director. She selected. You can say he is the assistant of director. Yeah, sort of. So in Slumdog Millionaire, that lady, Indian lady, Loveline Tandon, she was the casting director. She selected all this. Now again, that those characters, that Rubina, that girl, and all that. There is another guy, Jude or somebody, who got Yeah. out of all these people. Then this lady, out of them shortlisted. There's lot of children. We can say he is the source person to get that हाँ, cast. and then Danny Boyle will have the final say. Okay, this character will be played by this Rubina or whatever. But he will not do the job of, like Sir said, doing and He will not finding out. finalize. He will say, I want like somebody, a girl, growing in the slum, who's familiar with those romances and all that. And then this lady, since it was found out from India, this lady was assigned, she was the casting. Then she in turn cannot again go. She will source it from her known people. It may also That's all. happen that the faces which casting director does not send, and it is a matter of trust. Correct, correct. Yeah, अगर You are ऐसा भी हो right. सकता है कि उसको कुछ और ही पसंद आ हाँ, yes, रहा हाँ, वो भी सकता है. Like maybe this lady. कि जो आपकी एक्टिविटी है कि इसमें नृत्य इज अ हाईएस्ट स्टेज, और जो मिडिल स्टेज है दैट इज भूमि चाल, जो आपका वॉक है, एक्टिविटी है, जमीन पर जो सारा है, उसमें आपका स्पीड क्या है, आपकी एक्टिविटी क्या है, आपका टेम्पो क्या है, एंड अल्टीमेटली आपका बैठने का स्टाइल क्या है, आपका आसन क्या है ना। तो जैसे अब अंडरवर्ल्ड अगर दिखाते तो कैसे दिखाई देता है, एकदम ऐसे टांग उल्टा स्पीड। तो जो सारी चीजें हम जज करते हैं, तो उसमें we simply try to justify the acting। जैसे इंटरव्यूज में लोग जाते हैं, तो इंटरव्यू में जो लोग जाते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं, वो क्या देखते हैं उसमें? Disposition also. हाँ। General disposition. हाँ। Behavior. Behavior. The way you sit and हाँ। project yourself. हाँ। So we try to justify the character। और सबसे इम्पोर्टेंट ये लोग देखते हैं कि उसके अंदर विश्वास कितना है, ऑथेंटिसिटी क्या है, या ओवर कॉन्फिडेंट है, या झूठ बोल रहा है, या ये सारी चीजें हम प्रोपोर्शनली हम देखते हैं ना। तो इसमें जो इंटरव्यू देने वाले वो कैसे देते हैं, उनकी एक एक्टिविटी होती है, कैसे होती है लेने वाले. देने वाले। देने वाले. हाँ। What is your general observation? आप लोगों ने कितने लोगों ने इंटरव्यू लिया है? लिया नहीं कभी इंटरव्यू? मैं देता हूँ आपको। ठीक है। हाँ, मगर फिर भी एक ऑब्जर्वेशन होता है। Candidate should be polite as well as confident. I mean, though he is Well- polite, he or she is polite, well mannered. Well mannered. Well groomed also. Well-groomed. Communication skills. It's a every job has a different demand. हाँ। Different Personality. qualities. This is basic. Only expression. So this is basic. Yeah. Every position has some personality requirement. And I meet with that personality and fitting with that requirement. अभी
हां येस हां बेसिक ॲज अ इंटरव्ह्युअर जे बघितलं जातं दॅट इज हिज व्हॅल्यू सिस्टम. ती बघताना जे काही बघितलं जातं बॉडी पोझिशन लँग्वेज या सगळ्या गोष्टीतनं ते डेपिक्ट होतं. बट या जॉब पोझिशनसाठी किंवा त्या पोझिशनसाठी ते आहे की नाही दॅट इज द ओनली लेवलचा माणूस आहे म्हणजे प्रोडक्शनमध्ये काम करायला रफ अँड टफ यू शुड नॉट बी सो पोलाइट वर्कर्स इज नॉट वर्क ॲज पर द रिक्वायरमेंट आहे की नाही. एकदम पोलाइट सीधे साधा आदमी नहीं काम करेगा. थोड़ा सा आदमी रफ एंड टफ थोड़ा सा आवाज यूज किए इसकी वजह से ये हो गया इसमें. आप लोगों में से कितने लोग लड़की देखने के लिए गए हैं? शादी के लिए लड़की देखने के लिए किसी के लिए भी तो गए होंगे ना साथ में. एक मेरा दोस्त था वो भी मुझे एक ही बार लेके गया. मैं कभी गया नहीं अपने लिए लड़की देखने के लिए. लड़कियां को देखी हाँ लड़कियों को देखने के लिए. तो वहाँ पर ना जहाँ पर हम लड़की देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज क्या क्या होती है उसके घर के लोगों की या लड़की की. They're basically trying to please. due to how cultured they are. Yeah. also try to show that girl जिसको देखने के लिए आ रहे हैं उसकी सब खूबियाँ she's good at. The girl will show how active she is. Yeah, yeah. I mean, how good Obedient she is. whatever she is. And active. इसके सिस्टर को देखने के लिए कोई एक लड़का दिखाया था और उसे उसके साथ शादी नहीं करनी. उसने चाय कैसे ला के रखा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो उससे क्लियर हो गया सारा क्लियर हो. नाउ दिस इज अ मैसेज. अभी कुछ लोग जो वहाँ पर होते हैं ना कि देखते हैं कि लड़के कैसे बोलते हैं कैसे जानते हैं और कुछ तो स्पेशलिस्ट होते हैं. आई एम टेलिंग यू वन फनी एक्सपीरियंस. एक लड़का पुणे में रहता था बीइंग गेस्ट एफटीए में जब था तो वहाँ पे जिनके वो चाय के लिए बुलाया तो वहाँ पे एक छोटा लड़का है. मैंने उसको ऑब्जर्व किया तो उसका कान जो था थोड़ा वो स्पाइक था ना ऐसे मिस्टर स्पार्क. हाँ मिस्टर स्पार्क के जैसा एक कान था बड़ा. मैंने उसको ऑब्जर्व किया अरे तेरा कान तो मिस्टर स्पार्क के जैसा है. और सब लोग शॉक हो गए. इतने साल से हम लोग यहाँ पर है हमने कभी नोटिस नहीं किया. अरे तुमको ना लड़की देखने के लिए लेके जाना चाहिए. मतलब जब लड़की देखने जाते हैं तो सारा ये चीजें उसके काम कैसे है. पहले जमाने में वो शायद चल के दिखा. चल के दिखा. मतलब एक नहीं, मतलब कोई फिजिकल डिजीज नहीं इसके लिए वो चल के दिखा ये सब. थोड़ा थाली में भी खड़ा करते हैं. आँख चेक करते थे आँख में कुछ वो मोती बिंदु है थाली में क्या. पानी रख के उस पर खड़ा करके देखते थे. क्यों? There are some culture in Calcutta. ऐसा किसमें किसमें थाली में पानी रख के उस पर भी खड़ा करके वो शादी के बाद भी कुछ विधि होता है ना वो रेड रेड कर का कुछ हिंदी फिल्मों में होता है उसमें रख के फिर वो अंदर जाती है. नहीं उसमें भी वो चेक करते हैं पाय देख. किती मोठा आणि छोटा आहे. छोट्या पायाची तळव्याची विधी ही सुलक्षणीय असते आणि हाँ, ऐसा कुछ. त्याच्याने हे होतं. चायनामध्ये पण आहे. चायनामध्ये पण आहे इंडियामध्ये पण आहे. एक्चुअली सर मेरा ब्रदर की लड़की देखने गए थे. लड़की को ऑलरेडी जैसे आ गया करना ही था लड़की को. तो जब लड़की आई अंदर तो उसके फादर ने कहा बेटा इंट्रोड्यूस करो सब. तो मेरा नाम प्रिया और मैं कलकत्ता में जॉब करती हूँ. बिल्कुल ऐसे उसने कड़क होके बैठ गई. एंड तभी सबको लगता है कि शी इज नॉट. तो वही रेस्पेक्ट. So very अवे बॉडी लैंग्वेज. और एक तो क्या है कि मतलब कैसे होते हैं पीपल इनडायरेक्टली आल्सो ट्राई टू इम्प्रेस यू. तो सामने तो थोड़ी मतलब मेरी बहुत से सामने और बाद में बता कि वो चाय लेके आए थे ना तो कैसे लगे क्यों तो असर मतलब उस वक्त उन्होंने
कैजुअल विजिट और जाके ले आओ। कुछ ही नहीं है। तो इसमें एवरीथिंग इज अ एक्टिंग अभी मगर वो ऐसे परफॉर्म किया जाता है कि जो नी मतलब आगे नियति जो है जो प्रोग्रेशन है उसमें प्रोग्रेशन। तो इसमें whether we are working for a theater or a cinema, जो एक्टिंग है उसका रिजल्ट दिखाई देना चाहिए। अल्टीमेटली ऑडियंस शुड गिव अ सर्टिफिकेट नो दैट परफॉर्मेंस इज अ गुड परफॉर्मेंस। तो इसमें एक अच्छा ऐसा एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ जो चांदोबार ये है ना चंदा मामा उसमें कहानी आ गई। तो एक आदमी मतलब उस वक्त जो क्या कहते हैं उसको बहुरूपी, पहले बहुरूपी आते थे और वो एक्टिंग करके चले जाते पैसा मतलब वो जो मिलता था उसके ऊपर उनका जीवन चलता था। तो एक बहुरूपी गांव में आया और वो किसकी एक्टिंग कर रहा था बैल, बैल कैसे चलता है नहीं करता है। और गांव के सब लोग देख रहे थे तो एक आदमी ने क्या किया उसको चेक करना था कि सही में बहुरूपी है। उसने एक पत्थर होता है और उसे मार। अब उसके बाद मैं एकदम खुश हो गया एकदम नाचने लगा अरे क्या एक्टर है बहुत जबरदस्त एकदम। इतना तुमको खुश होने लगा अरे क्या एक्टिंग किया उसने एकदम बिल्कुल बैल की तरह। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया था बॉडी यस मतलब बॉडी शेक होता है जहाँ पे पत्थर मारने के बाद बॉडी वैसे शेक होती है। वो एक्टर जो था उसने तुरंत उसका बॉडी भी शेक की। नाउ दिस इज अ ऑब्जर्वेशन शार्प ऑब्जर्वेशन। तो इसमें जो आपको अभिनय क्रिएट करना होता है तो उसमें कहीं पर भी ज़रा भी खोट नजर ना आए ना। हम बोलते हैं हमारे इसमें कुछ खोट दिखाई दे तो वो भी उसको या उसमें उनको it means somewhere we are also lacking in some visual evidence. अभी apart from this body language and this thing, there are some visual details next में में देखेंगे in which you have to create your character. You have to create one character, okay, and in practicing उसकी जो activity होगी you have to perform a character in which you have to use these basic tools of Angika and Chitrabhi. Okay. In exceptional case, you can use time. Oh, not necessarily. Not necessary. But you can. You can. तो इसमें प्रैक्टिकली अभी हमें क्या करना है? Now we'll have to divide into teams. दो लोग हम डिवाइड हो जाएंगे और इसमें now अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि we are trying to understand the character through filmmaker and actor. now दो लोग रहेंगे उसमें से एक एक्टर होगा एक डायरेक्टर। ओके नाउ दोनों को एक दूसरे के लिए एज ए एक्टर डायरेक्टर काम करना है। नाउ इसमें ये क्या है रिक्वायरमेंट इज if you two people are there, so you have to write one character and activity and you have to perform. That means you have to take a performance from and as well as तो you have to मतलब क्या है कि आप खुद को कैरेक्टर क्रिएट भी करना है और वो परफॉर्म भी करवा के लेना है as well as you have to also submit yourself क्योंकि एक्टर इज बेसिकली सबमिशन टू द कैरेक्टर, सबमिशन टू द डायरेक्टर। ओके तो इसमें आपको कैरेक्टर क्रिएट करना है। ओके नाउ इसमें बेसिक व्हाट यू कैन से प्रॉपर टेक सब भाई Yeah, you go to the for the essence of the character. सातवीं भाग जैसे कैरेक्टरिस्टिक जो होती है कैरेक्टर की मीन्स थ्रू एक्टिविटी देयर कैन बी डिफरेंट थिंग्स बट थ्रू एक्चुअल जो इनका इंटेंशन होता है उनके जो मन के जो भाव होते हैं
अंदर के जो फीलिंग्स है दैट कैन बी द डिफरेंट एस्पेक्ट. तो जो एक्टिविटी आप एक्सटर्नल अपीयरेंस पता चलता है, सो दैट विल इंडिकेट योर सात्विक भाव. हाँ, जैसे काफी अच्छा था, मगर एक्चुअली जब हमें उसका शूटिंग करना है तो इन शूटिंग हम क्या वो एक शॉट में हम नहीं करेंगे, वो शॉट बाय शॉट उसे शॉट डिवीजन करके उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके हम उसे परफॉर्म करेंगे. तो फिर जब हम आपसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पहले तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाउ यू हैव ट्रेन्ड योर एक्टर, आपके कैरेक्टर को आप कैसे मोल्ड करें. क्या शायद हमें उतना वक्त नहीं मिला था कि जिसमें आप आपके कैरेक्टर के साथ भी प्रैक्टिस करें, उसे परफॉर्मेंस करवाएं. अभी द एक्सरसाइज वाज टू यूज चित्राभिनय एंड अंगिका, जिसमें बॉडी का जो आपका जो एक्सरसाइज है, बॉडी का जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस हमें दिखाई देना. अभी इसी में से we have extra practical, जिसमें now I will tell you what we have to do. Okay. अभी इसमें you have to feel that character. आप हो now this is exercise number 1. You are an underworld और वेणु जी आप है, आपके साथ आपका लड़का है. You are a builder. अब यहाँ पर अभी देखिए बिल जो है कि आपको जो टाइम में पैसा देना चाहिए था उस टाइम में पैसा आपको नहीं दिया गया. और सिचुएशन ऐसा है कि ये आपको मार भी सकते हैं, ऐसे आपको लगता है, और आपको क्या लगता है कि इसको मार देने से जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा. now इसमें दो लोग हैं, दो लोग आप हैं, तो आप दोनों के इसमें इंटेलेक्चुअल डायलेमा है. सो दैट इज अ सात्विक भाव. इसमें क्या है कि नाउ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि दोनों में आपस में कम्युनिकेशन क्या होगा. बिगिनिंग का डायलॉग आप थोड़े से ले लीजिए, मतलब उसके बाद व्हाट इज योर चैलेंज इज टू कम्युनिकेट अमंग योरसेल्फ कि चलो मांडलिक करते हैं. आपका भी वही है एंड अल्टीमेटली व्हाट इज द कम्युनिकेशन. ठीक है. See, now we need to take a particular angle. आप लोग यहाँ पर बैठे, यहाँ पे इंटू 1 थे. आप चारों लोग बाहर जाके 5 मिनट का आपका ये करके मूव करना. ठीक है. दिस इज टिप नंबर 1. सेकंड थिंग, सर डायलॉग कर रहे हैं ना? या डायलॉग कैन बी देयर. नाउ आप चार लोग हैं. लिसन ना, इनका एक्सरसाइज है कि आप क्या आप किसी के घर में गए, मतलब किसी एक के घर में 3 लोग जाएंगे आणि ते सांत्वन करण्यासाठी तुम्ही गेले काय. पण या सांत्वनामध्ये तुम्हाला जास्त काय म्हणतात त्याला आश्वासनबाजी नाही करायचं. तिथे तुम्ही तुमच्या गेस्चरमधून, बॉडीमधून तुम्ही तुमचं रिलेशन इस्टॅब्लिश करायचं की त्याच्याबरोबर तुमचं रिलेशन काय आहे किंवा चौघांचं आपापसात रिलेशन काय आहे. आणि याच्यामध्ये नाऊ डोंट थिंक की तुम्ही कुठेतरी वेगळ्या ॲक्च्युली इथे बसून समजा सांत्वनाचं चाललेलं आहे, कार्पेटवरती बसलेलं आहे, दिवा लावलेला आहे, जे काय आहे, आणि तसे तुम्ही म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुमचं डोळ्याचं, हाताचं, ओठांचं हे सगळे जे भाव आहेत
इस्टॅब्लिश दाखवाय ठीक आहे मग ह्याच्यामध्ये काय प्रॉपर्टी पाहिजे किंवा डायलॉग काय असेल ते तुम्ही इस्टॅब्लिश करायचं All is formal. Yes, this is step 1 No, all formal going to somebody's place. No, One of them is